Good morning, everyone. Importance and significance of organizing. In previous class, we discussed meaning of organizing and process of organizing. छोटा सा एक रिवीजन पोर्शन के अकॉर्डिंग अपन उसके बारे में देख लेते हैं. In meaning of organizing, we discuss identify and grouping the activity of different activity and comes with the physical, financial and human resources to achieve organizational goal. जो भी अपनी एक्टिविटीज़ होती है टारगेट को अचीव करने के लिए, उन सबको एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर में डालना ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग. ये एक सिंपल जनरल मीनिंग अपन लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द process of organizing. In process, the first step was identification and division of work. First we have to identify that what work we have to perform in the organization, and identification के बाद में अपन लोगों ने किया था division of work. The total work should be divided in the small task according to interest and area and qualification of the person या personal. Identification division of work के बाद में अपन ने बात की थी departmentization. And departmentization, we discuss about the two type of department: planning department, department according to function, department according to division. In divisional department, we discuss cosmetic item, hospital, school and banking sector each have separate division of the department for the separate organization. And the second one was the functional departmentization. Functional departmentization we discuss related to the first purchase department, sales department, marketing department, research and development department and other department. Third one is assignment of duties. In organized structure, third process was assignment of duties, means duty assigned to a person according to the requirement of the organization. And fourth was reporting relationship. Assign them reporting relationship between the organization, who was the superior of the organization, who is the superior of the organization and who is the subordinate, who will report to whom, such type of relationship. That was the last and fourth process, that is establishing reporting relationship. Okay, after that next one is importance, significance of organization. In importance and significance of organization, we discuss about what is the main importance, what is the main significance of the organization structure, why we create the organization structure, that is including the importance and significance of organization. There total 7 major points include in the importance and significance of organization. Number one is the benefit of specialization. What is the specialization? In process we discuss, the first process is identification and division of work. In this division of work means work should be divided in the small tasks to a particular person, that what work should be performed by A, B and C individually. We divide the work according to the need of the organization, according to qualification and specialization of the person. Just suppose A को अपन ने वर्क असाइन किया कि मार्केटिंग का वर्क करना है. मार्केटिंग के अंदर अब ए रिपीटली मार्केटिंग का ही वर्क कर रहा है, इस साल करेगा, नेक्स्ट ईयर करेगा, नेक्स्ट ईयर करेगा, कंटिन्यूसली वो मार्केटिंग में लगा, तो उसकी जो नॉन पर्सन की लिस्ट है वो इंक्रीज होते हुए चलेगी. जिन लोगों से फर्स्ट टाइम आज मिला है, कल वो उसके क्लोज होंगे, धीरे धीरे फ्रेंडशिप ने नेचर डेवलप कर सकती है यदि उसके अंदर स्किल है तो, और एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है उसके अंदर, फिर वो मार्केटिंग वर्क में स्पेशलिस्ट बनते हुए चलेगा. तो जैसे अपन लोगों ने डिपार्टमेंटाइजेशन की बात की, इन डिपार्टमेंटाइजेशन वी डिवाइड वर्क इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन. पर्सन का इंटरेस्ट मार्केटिंग में, तो वो मार्केटिंग फंक्शन को बेटर वे में परफॉर्म करेगा, और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन आता है वर्क के अंदर और वर्क अच्छे लेवल से होता है. बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, द स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली कम व्हेन एन इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग वन जॉब रिपीटेडली. एक के बाद में एक उसी जॉब को बार बार में करेगा. एक्सपर्टाइजेशन, एक्सपर्ट बनेगा उस वर्क को परफॉर्म करने में, और वो इजीली उस वर्क को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है. इसी के बारे में अपन लोगों ने फर्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं. देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग.
In organizational process, we divide four category. Number one process is identification and division of work. आइडेंटिफिकेशन का मतलब वर्क क्या क्या करना है पहले आइडेंटिफाई करना, एंड सेकेंड वन इज डिवीजन ऑफ वर्क. उस वर्क को जो अपन को परफॉर्म करने उन वर्क को पर्सन को असाइन करना. अब मैंने असाइन कर दिया अलग अलग वर्क. एक पर्सन मार्केटिंग में रहेगा, एक पर्सन फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहेगा, एक मार्केटिंग में रहेगा, एक परचेजिंग डिपार्टमेंट में रहेगा, एक सेल्स डिपार्टमेंट में रहेगा. अलग अलग अपने वर्क डिवाइड कर दिए. अब जो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर पर्सन है लाइक सेल्समैन, वो मार्केट के अंदर अलग अलग लेवल पे सेल करेंगे. एक को अपने एरिया वाइज डिवाइड कर दिया, मान लीजिएगा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, सेकंड को सीकर डिस्ट्रिक्ट और थर्ड को चूरू डिस्ट्रिक्ट अपन ने अलॉट किया है. अब ए जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में वर्क कर रहा है उसके झुंझुनू के अंदर बहुत सारे पर्सन नोन होंगे और वो अपने वर्क में धीरे धीरे एक्सपर्ट बनता हुआ चलेगा. उसकी स्किल भी इंप्रूव होगी, कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और कैसे अपन लोगों को उसको जो उसकी क्वेरी है उसको सॉल्व करना है, कैसे अपन लोग उसको टाइम पर उससे ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं और कैसे अपन लोग उसे कैश कवर करेंगे. ये सारे वर्क सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स को अपन देते हैं. तो यदि ये सारे वर्क वो करेगा तो धीरे धीरे उस वर्क के अंदर उसमें एक्सपर्ट बनता हुआ चलेगा. यही इंपॉर्टेंस की बात यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे बात हुई. बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन ड्यू टू रिपीटेडली वर्क अगेन एंड अगेन ए पर्सन ऑटोमेटिकली बिकम स्पेशलिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब. ओके, सेकेंड वन इन क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप मीन्स जब डिपार्टमेंटाइजेशन अपन क्रिएट करते हैं, डिपार्टमेंटाइजेशन के अंदर अपन लोग क्या करेंगे, जैसे अपन ने डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट ए जो हर एक डिपार्टमेंट को देखेगा, बी में अपन ने अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट बनाया, परचेज, मार्केटिंग, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. अब परचेज डिपार्टमेंट के अंदर 3 पर्सन रखे. ए तो अपन ने ऑलरेडी यहाँ दे रखा है तो यहाँ कर देता हूँ बी, सी एंड डी. अब बी का वर्क ये रहेगा कि जो भी रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल जो अपन परचेज करेंगे उन रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से आ सकता है उसका एनालिसिस करना है, कहाँ कहाँ से अपन रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं. वो हर एक एरिया देखेगा. जैसे अपना रॉ मटेरियल जयपुर में अवेलेबल है, सीकर में अवेलेबल है, अजमेर में, बीकानेर में. तो अब ये क्या करेगा, इन सब जगह इनकी प्राइस लिस्ट चेक करेगा, इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा. ये जयपुर से मंगाएगी तो क्या कॉस्ट होगी, यदि अपन सीकर से मंगाते हैं तो क्या कॉस्ट होगी. मतलब अपने वर्क के अंदर वो अब इमीडिएटली नए बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं. हमारे बी सी डी इसमें 3 पर्सन है. अब मैंने इसके अंदर ई को अपॉइंट कर दिया. ई नहीं जानता कि कौन कौन से पर्सन है जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं. ई को रॉ मटेरियल की क्वालिटी का नहीं पता. ई को जो परचेजिंग जो अपन करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी उसका नॉलेज नहीं है. तो क्या ई इस वर्क को इमीडिएटली अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता. तो ई नहीं कर सकता इसका मतलब एक पर्सन बार बार में करेगा तो क्या हुआ, बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन. और ये पता कि बी की वर्किंग प्रोफाइल क्या है, ये इसके अंदर है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप कि बी किसको रिपोर्ट करेगा, परचेज मैनेजर को. परचेज मैनेजर किसको करेगा, जो एरिया मैनेजर है उसको करेगा. एरिया मैनेजर किसको करेगा, जो कंपनी का उसका मेन सुपीरियर है उसको रिपोर्ट करेगा. तो ये क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप कि हर एक पर्सन के अंदर क्या क्या वर्किंग होगी, उनकी रिलेशनशिप क्लियर होगी. इन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इट इज क्लियरली डिफाइंड दैट व्हाट ऑल एंड हाउ मच पावर एंड अथॉरिटी enjoyed by the different individual or manager. The superior subordinate relationship is clearly defined in organization. Who is the superior, परचेज मैनेजर, एंड हु इज द सबॉर्डिनेट, बी सी डी. जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर अपन ने रख रखा है के, एल और एम. तो ये सबॉर्डिनेट है. ये पी परचेज मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करेंगे. ये किसको रिपोर्ट करेंगे, ये फाइनेंशियल मैनेजर है उसको रिपोर्ट करेंगे. तो ये जो रिलेशनशिप अपने बताई है इसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं. और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनने के बाद में ये जो रिलेशनशिप है ये इजीली क्या होती है, क्लियरली अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं. इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसी को अपन लोगों ने बताया कि इट्स डिफाइन हु इज द सुपीरियर एंड हु इज द सबऑर्डिनेट मींस रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. आप लोगों ने जो फंक्शन देखा था, प्रोसेस देखी थी. प्रोसेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट बताया था आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड बताया था डिपार्टमेंटाइजेशन अकॉर्डिंग टू डिविजनल डिपार्टमेंट,
and functional department. Third one was assignment of duties, and fourth was establishing a reporting relationship. ये reporting relationship इसी की process होती है, इसी benefit की अपनी यहाँ पे बात की. Third one was optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources की यदि अपन बात करते हैं, मीन्स यदि अपन ने पर्टिकुलर डिपार्टमेंटाइजेशन कर रखा है तो उससे डुप्लीकेशन नहीं होगा वर्क का. जो वर्क अपन लोगों को असाइन किया गया बस वो अपन को वर्क करना है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर अपन लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. डुप्लीकेशन या ओवरलैपिंग वर्क में परफॉर्म नहीं होगी. इसी की अपन बारे में बात करते हैं. मान लीजिएगा कि अपन ने पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंटाइजेशन ही बनाया, आप लोग क्लास के अंदर आए बैठे, अब अकाउंट के टीचर कह रहे हैं मैं पढ़ाऊँ, बिजनेस स्टडी का टीचर कह रहे हैं कि मैं पढ़ाऊँ, इकोनॉमिक्स के टीचर आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुझे पढ़ाना है. अब तीनों टीचर्स, या एक टाइम पर ऐसा हो सकता है कि तीनों टीचर्स सोच रहे हैं कि मैं रेस्ट करूं क्योंकि प्रॉपर वर्क डिवाइड नहीं किया हुआ. अब असाइन किया हुआ है, फर्स्ट पीरियड इनका रहेगा, सेकंड इनका रहेगा, एक शेड्यूल बना हुआ है. तो इसका मतलब क्या, वहाँ पर क्लियरिटी रहेगी कि वर्क कैसे परफॉर्म करे और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी गलत है, मिनिमम भी गलत है. Optimum utilization of the resources is possible due to the organizational structure. That is the third benefit of the organizational structure. There are no chance that the same work is performed by two or more individual. एक ही परफॉर्म कर रहा है. अकाउंट्स के अंदर मान लीजिएगा 3 टीचर्स है, या बिजनेस स्टडी के अंदर 3 टीचर्स इन्वॉल्व है. मैं भी वही चैप्टर पढ़ा के जा रहा हूँ, दूसरा बंदा आया वो भी वही पढ़ा रहा है. मतलब आप लोगों का एक चैप्टर 3 बार हो चुका है लेकिन सेकंड चैप्टर एक बार भी नहीं हुआ. तो ओवरऑल अपन लोग ये कह सकते हैं कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क परफॉर्म हो रहा है, रिपीटेड वर्क हो रहा है, लेकिन वर्क परफॉर्म प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है. तो ये चीज़ हो सकती है यदि अपन ने प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं बनाया. ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाया, परचेज डिपार्टमेंट सिर्फ परचेज को देखेगा, सेल्स डिपार्टमेंट सिर्फ सेल्स को देखेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग की बात करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च की बात करेगा. तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, डुप्लीकेशन के चांसेस कम रहते हैं, ना के बराबर होते हैं, नहीं होते. तो थर्ड वन वॉज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट वॉज adoption to changes according to the change in the environment. It may be changed according to the fashion, design, taste and other environmental forces. If a particular organ structure is in the company, then company easily change to human resources according to change of business environment. Like ये जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19, अब यहाँ अपनी स्कूल में प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना हुआ है. जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्लासरूम में जा रहा था उसी वे को कह दिया कि अब आपको क्या करना है, यहाँ आके इस रूम के अंदर वीडियो बनाने, अलग अलग स्टूडियो बन गए और उन स्टूडियो के अकॉर्डिंग वीडियो बन रहे हैं. अब ये चेंजेस जो आप लोगों के स्कूल एनवायरनमेंट को इफेक्ट डाल रहा है, ये क्या है, ये एनवायरमेंटल चेंजेस है. ये एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से आप लोग पढ़ चुकी हुई चैप्टर, इसकी वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम आई, हर एक बिजनेस में. तो उस बिजनेस के चेंजेस को इजीली अडॉप्ट करना पॉसिबल है यदि क्या होगा, यदि प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना होगा. रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज होगी तो परचेज डिपार्टमेंट इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा सेल्स डिपार्टमेंट को कि सेल्स की प्राइस इंक्रीज करनी है. फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि आपको ज़्यादा फाइनेंस अलॉट करना है परचेज डिपार्टमेंट को, तभी जाकर ये चीज़ पॉसिबल, नहीं तो नहीं हो पाएगी. ये सारी चीज़ें किसको हाईलाइट कर रही है, ये सारी चीज़ें हाईलाइट कर रही है एनवायरमेंटल इफेक्ट को. तो यदि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर अपन लोगों ने चैनल सिस्टम बना रखा है तो ये चीज़ पॉसिबल है. अडॉप्ट टू चेंजेस देखिएगा, whenever the changes take place in the business environment, then with the help of organizing function, these changes can be adopted systematically because organizing function create different department and group related activity under each department. हर एक डिपार्टमेंट, परचेज रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज हुई, परचेज डिपार्टमेंट इमीडिएटली क्या कर रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर रहा है. ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट उस चेंज के लिए तैयार है, प्री डिसाइड कर चुका है. रॉ मटेरियल की प्राइस हुई, सेल्स की वैल्यू इंक्रीज करनी ही पड़ेगी क्योंकि कॉस्ट कवर करना है अपन लोगों को. ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसकी रिसर्च कर रहा है कि कैसे अपन लोग कॉस्ट को कम नहीं कर, प्राइस यदि इंक्रीज नहीं करे तो कॉस्ट को कैसे अपन कवर करेंगे. हर एक चीज़ डिपार्टमेंट इमीडिएटली ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है और उस चेंज के लिए, उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो रहा है कि कैसे अपन लोग उसको फेस कर सकते हैं.
कैसे बिजनेस के अंदर उस सिचुएशन को अपन रखेंगे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, 5th नंबर पे है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यदि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में अपन बात करें तो द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट कीपिंग इन माइंड द कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट बाय ब्रिंग क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव इंप्रूव। देखो इसमें क्या है कि जैसे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात की कि द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर रिलेशनशिप रहती है, कीपिंग इन माइंड द कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट बाय ब्रिंग क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव मैनेजर। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल में मैंने ये बताया कि रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज हुई तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस में ऑटोमेटिक। तो ये क्या है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वन डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट, देयर शुड बी ए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट्स में जो कोऑर्डिनेशन है उसकी रिक्वायरमेंट है। ये कब पॉसिबल है, जब इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। कंपनी कैन इजीली मीट द चैलेंज एंड कैन एक्सपेंड देयर एक्टिविटी इन ए प्लान्ड मैनर विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्क। बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस में चेंजेस होंगे, बिजनेस को अपन लोग एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। उस सिचुएशन में अपन को क्या करना होगा, उस सिचुएशन में एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बना है तो ही वो चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज तो क्या होगा, ओवरबर्डन क्रिएट होगा। एक पर्सन जो परचेज और सेल्स और मार्केटिंग तीनों का वर्क एक ही पर्सन देख रहा है। अब उसके अंदर यदि बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो अपन लोगों को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वही पर्सन है जिसका ऑलरेडी वर्क परचेज सेल्स और मार्केटिंग का हो रहा था, वही पर्सन अब क्या करेगा, सेकंड जो बिजनेस को जैसे एक्सपेंड किया उसका वर्क भी उसी पे आएगा और ओवरबर्डन बनेगा, वर्क परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम आएगी। तो यदि प्रॉपर डिपार्टमेंटाइजेशन बना हुआ है तो उस वर्क को परचेज डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल परचेज करा वही पता करेगा कि और कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है। यदि बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो वहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले 60 यूनिट का रॉ मटेरियल परचेज करा था अब 100 का कर दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। यदि प्रोडक्ट चेंज कर रहा हूँ तो पहले का परचेज कर रहा हूँ, उसका रिलेशनशिप ऑलरेडी बनी हुई है, दूसरे से रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, इमीडिएटली हो सकता है। सेल्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी अपने कस्टमर बना चुका है और उसको ए गुड्स सेल कर रहा था, अब बी गुड्स और सेल करना है, इजीली कर सकता है। जो शर्ट सेल कर रहा था वो पैंट पीस भी सेल कर सकता है, तो इस तरीके से उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब यदि डिपार्टमेंटाइजेशन बना हुआ है तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इट पॉसिबल। Next one is the development of personnel. In departmentization, there is a delegation of authority. In delegation of authority means authority divide into the personnel. Into the personnel मतलब मेरे पास में जो authority है वो मैंने divide कर दी। आप लोगों ने अभी देखा था the total authority have A. He divide his authority according to the department's head like purchase manager, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, परचेज मैनेजर हैव 3 एम्प्लॉय बी, सी एंड डी। अब ये जो इसने अथॉरिटी असाइन की है इसको, ये क्या होगा, डेलीगेशन ऑफ वर्क, डेलीगेशन ऑफ द पावर of the authority to taking the decision related। and purchase manager क्या कर रहा है, बी को अथॉरिटी दे रहा है कि बी, सी और डी को अथॉरिटी दी कि आप 10% क्या कर सकते हो डिस्काउंट, सॉरी परचेज डिपार्टमेंट के अंदर अपन बात करेंगे तो आप लोगों को बेस्ट परचेज करना है। लेकिन यदि सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें, सेल्स में मान लीजिए के, एल और एम है, तो इनको ये अथॉरिटी दे सकता है कि 10% क्या कर सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो जब आप लोग कस्टमर आपको अच्छा ऑर्डर दे। तो ये क्या क्या इन लोगों ने अपनी अथॉरिटी दूसरे पर्सन को दी है। इसमें क्या होता है कि यदि अथॉरिटी डिवाइड करेंगे उससे ऑटोमेटिकली पर्सन है उसकी डिसीजन पावर कैपेसिटी इंक्रीज होगी और उसको ये पता लगेगा कि मुझे कैसे डिसीजन लेना है। मतलब आइडिया और इनोवेशन उस चीज़ में पॉसिबल होंगे जब अपन लोगों ने ये चीज़ की है। तो लास्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बाय डेलीगेशन द रूटीन द मैनेजर कैन कंसंट्रेट टू डेवलप न्यू मेथड एंड वे ऑफ परफॉर्मिंग जॉब। नए मेथड परफॉर्म करना,
एंड वर्क को कैसे अपन लोग इमीडिएटली परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ पॉसिबल है यदि अपन लोगों ने ये चीज़ें की है तो। इसका मतलब आज अपन लोगों ने पढ़ा इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब तक अपन लोगों का हो चुका है नंबर 1 मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 2 प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड नंबर 3 इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।